Institute. हाँ जी। Our placement record is 78 to 80%. ट्रैवलिंग के दौरान मैं कॉलेज देख रहा हूँ। तो लास्ट वीडियो में आपने देखा कि मैं पहुंच जाता हूं गुवाहाटी से शिवसागर। इस वीडियो में हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं सर के इंजीनियरिंग कॉलेज को, जिन्होंने मुझे वीडियो बनाने के लिए वहां इनवाइट किया है। आज डेट है 12 एंड इस समय मैं सर के कॉलेज में आया हूँ। This is Assam Energy Institute. हाँ जी। This is a center for Rajiv Gandhi Institute of Petroleum Technology. First it was called Assam Center. Now it has a different name, but it's still not an independent institute. It's just a center actually. It is officially in the league of IITs and NITs. So it's a central government institute. It was founded in 2017, and this temporary building came up I think in 2018 or 19. And permanent buildings are being constructed. You can see outside. Yes. Most of the teachers are from IITs and foreign universities. They have PhDs and postdocs. Okay. So teachers are very qualified. Even the lab technicians, some of them have PhD and postdocs. Wow. So इस समय मैं हूँ सर के साथ, चिन्मयजीत सर, राइट सर? Right. सर इस कॉलेज के इंचार्ज हैं, तो सर से अभी बात करते हैं। So sir, is there anything you want to share? Like Actually, I'd like to say something about our institute. Okay. This is basically a new institute. We are a part of Rajiv Gandhi Institute of Petroleum Technology. Okay. RGIPT or Rajiv Gandhi Institute of Petroleum Technology is an institute of national importance. Okay. Set up by an act of parliament. Initially, we started with diploma courses. 2017, we started with 3 diploma courses in petroleum engineering, chemical engineering, and mechanical engineering. After successful completion of 3 years, then owing to the demands of the oil and gas industries in this region, yeah. so we floated 2 new diploma courses. One is the Fire and Safety Diploma in Fire and Safety Engineering, and the other was Diploma in Electronics and Communication Engineering. We enroll students only from Assam. Okay. Basically, we enroll students from Polytechnic admission base. But from this year, we will be taking students or enrolling students from the entire northeastern region. And gradually, we are hopeful that from in the next 2-3 years, we'll take students from the entire country. And our placement activities are, we have a very dedicated training and placement cell. The placement cell is responsible for arranging internship for students, placement activities for students. In fact, in the last 3 years, our placement record is approximately 78 to 80%. For Oil India and few of the PSUs, we do campus interviews. They conduct campus interviews to recruit students for apprenticeship training. So there is a minimum criteria that students will have to undergo apprenticeship training. Minimum criteria. This is a minimum criteria which is laid down by few PSUs like IOCL also. You will have to undergo this apprenticeship training of 1 year. Yes. To apply for a job over there, for a permanent position. Okay. I am very happy to inform you that last year also all the 100% 30 mechanical engineering students, 30 were there. 30 diploma students were placed in a company called Subra. Wow. All the 30 students were placed. And in fact, in this year also 25 students from mechanical engineering and 9 students from electronics and telecommunication engineering. This diploma has already been placed at Subra. Okay. It is basically a MNC only, big MNC. Now also we are in a very nascent state. Yes. And we do have good infrastructure facility also, labs we have, and as construction, most of the construction activities like newly developed academic block hostels. At present, the students reside in hostels located outside the campus. We have taken hostels and few hostels on lease, Okay. where the students reside. But so through your medium, I would like to welcome the students who are eligible to take admission at Assam Energy Institute, SivaSagar. So please go through our website. Okay. Our admission details are available in our website, and I urge all the students of Northeastern region to please go through our website, and if you have interest in doing diploma, so rather than doing it from a state polytechnic, you can opt for this central government institute. Our main asset is our faculty members. All the faculty members, they are very highly qualified. Yes. Almost 99% have done their PhDs and postdocs either from IITs or from some foreign universities. One more thing I would like to add. Yeah. After passing out diploma from this institute, our students are eligible for lateral entry in our main campus also. At RGIPT JAIS also. Because if for a normal student, if he or she has to take admission at RGIPT JAIS, will have to come through JEE Advanced. After completion of diploma,
the toppers from each branches. 10% seats are reserved. Lateral entry from this institute. In that engineering In our main campus, in our main institute, which is located at Amity. That is basically they offer their BTech, MTech and PhD. Thank you. यहाँ पे ये है बास्केटबॉल कोर्ट और बैडमिंटन बिकॉज बास्केटबॉल के तो वो है ही नहीं। ये पुराना सिस्टम है प्रोजेक्टर वाला। जी तो यहाँ पे इस थ्योरम को देख के कॉलेज की याद आ गई। एंड ये कुछ क्लासरूम एंड यहाँ पे कुछ यूट्यूब तो सर ऐसा है कि कोई भी बन सकता है ना, जैसे आप हैं, आप अपने सब्जेक्ट का पढ़ा सकते हैं उसमें। हाँ इसमें ये पेन तो एनिमेशन चलाते हैं सर इसमें। एंड इधर एसी भी है। इधर इस आसाम के हर कॉलेज में एसी होता है क्या? नहीं, कोई चांस नहीं। पर्टिकुलरली यही है। हाँ, कोई कॉलेज में क्लास में एसी नहीं होता। क्योंकि हमारे यहाँ नहीं था ना, इसलिए पूछ रहा हूँ। कोई कॉलेज में टूटा-फूटा कॉलेज जैसा टूटा होता है। सो एक्चुअली जैसा सर का ये डिप्लोमा कॉलेज है, वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो फुली फंक्शनल है। इसमें एसी है, आपका स्मार्ट कंप्यूटर है और मतलब फैसिलिटीज़ काफ़ी सही लग रही हैं। इनिशियली अभी ये बिल्ड हो रहा है, जैसा आप देख सकते हैं। हर क्लासरूम में यहाँ पे आपकी चेयर्स जो हैं मतलब ऊपर राउटर लगा पड़ा है, इधर ब्लैक बोर्ड है, वाइट बोर्ड है सॉरी, एक कंप्यूटर है जिसमें लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, मेरे लिए ये सब नया है, इसलिए मैं टर्मिनोलॉजी जो है कुछ गलत भी कर सकता हूँ, तो आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा अपने हिसाब से। ट्रैवलिंग के दौरान मैं कॉलेज देख रहा हूँ। हाँ, सर के साथ टेक्निकल सुपरिटेंडेंट सर हैं, उनके साथ हम यहाँ पे लैब देखने वाले। केमिकल इंजीनियरिंग लैब एंड मैकेनिकल केमिकल दोनों में ही कराते हैं जी। ये सब केमिकल का वो मिक्सिंग फिक्सिंग करने का जी ये होता है। तुम किए हो ना एटलीस्ट। तुम्हारा इंजीनियरिंग कौन सा ब्रांच में है? इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग। तुम्हारा इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गया था? हाँ जी 11 to 15। प्रोसेस कंट्रोल लैब के लिए है। तो सर यहाँ पे मतलब मोस्टली प्रैक्टिकल कराया जाता है जी। Bernoulli's theorem. बर्नौलीज थ्योरम। So these are basically multi-stream. मल्टी स्ट्रीम Multi-stream. गैजेट्स ओके। Like this one is reciprocating pump. रेसिप्रोकेटिंग पंप ये रेनॉल्ड्स Then नंबर there you have centrifugal pump ओके। at the end of this. इसके अलावा हमारे उधर आपका ये भी हो रहा है, स्टूडेंट हॉस्टल हो रहा है। हॉस्टल बन रहा है हॉस्टल और अब एक बड़ा वाला कॉमन कैंटीन भी बनेगा जी। तो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ ना, हाँ जी उसका ऑडिट होगा, उसके पहले एसेट वेरिफिकेशन होगा, सारा सामान है कि नहीं। ही इज डॉक्टर तपोन गोगोई, जी ये टेक्नीशियन है, जी ये भी पीएचडी किया है ओके डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी से। ओके सर। सीएनसी लेद है, हाँ जी। मिनिएचर है, लेकिन हाँ, लेद। प्लास्टिक का कुछ बनाना है तो कंप्यूटर में प्रोग्राम लिखोगे तो। और ये सीएनसी मिलिंग मशीन है, वेल्डिंग मशीन है, इसको स्पॉट वेल्डिंग बोलता है। और ये सारे डिफरेंट इलेक्ट्रिक वेल्डिंग करते हैं। सफ़ेद वाला देख लो ना, हाँ जी ये वाटर टरबाइन है, वाटर टर्बाइन। 3D प्रिंट करके बनाए बच्चे। अरे वाह। सो मतलब यहाँ 3D प्रिंटर भी है एक? नहीं, कॉलेज में नहीं है, बाहर से उसको बना है। करके बाहर से बना है। 3D प्रिंटर हम खरीदेंगे। सो इस समय यहाँ पे कुछ फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, जहाँ पे मैं इनसे कुछ क्वेश्चन करने वाला हूँ रिगार्डिंग इस इंस्टीट्यूट। ब्रदर कैन यू टेल लाइक हाउ वाज योर एक्सपीरियंस बीइंग हियर इन दिस इंस्टीट्यूट? तो एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा है। हाँ जी सब अपना लैब इक्विपमेंट सब अच्छा ही है, सब हमारा सब फैकल्टी मेम्बर सब हाईली क्वालिफाइड है जी। हम बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। मतलब आपका ये लास्ट ईयर है ना, क्योंकि मतलब बढ़िया रहा पूरा एक्सपीरियंस आपका भी ब्रदर? सेम ठीक रहा काफ़ी। ओके, तो अभी फाइनल ईयर में आप इंटर्नशिप ये सब करने वाले हैं? इंटर्नशिप हमारा वो एक हो गया। हो गया है? हाँ सब
वो अप्रेंटिसशिप हाँ जी। बाद में आएगा। तो कितना आसान या हार्ड था इंटर्नशिप में जाना? इंटर्नशिप तो इजी था। इजी? हमने तो बहुत यहाँ पर वो पढ़ ही लिया था। हाँ जी। लेकिन वो प्रैक्टिकली देखा नहीं, फॉर एग्जांपल एज अ स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से कि एकदम से आपको कॉलेज ने इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी दिलवा दी, ऐसा कुछ? कॉलेज में ही ओके, ठीक। और अब फर्दर आप इंजीनियरिंग करेंगे या डायरेक्ट जॉब के लिए अप्लाई करेंगे? कुछ वो लेटरल एंट्री वो दूँगा। हाँ जी, लेटर एंट्री। और जब पीएससी प्रिपरेशन करूँगा पीएससी हो जाएगी। ओके ब्रदर, ओके ओके, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर इंटरेक्टिंग। सुब्रमण्यम एंड यू आर टेक्निकल सुपरवाइजर। ओके सर। तो सर बताएंगे यहाँ पे फिजिक्स की लैब। ओके सर, लेट्स स्टार्ट। एक्चुअली इट्स फाइन सर, इट्स फाइन। हम लोग के पास अभी ऐसा मतलब 7 एक्सपेरिमेंट का सेटअप है। हाँ जी। जो अभी मतलब चल रहा है मतलब जी। और ऐसे कुछ पुराने मतलब ऑब्सोलेट इंस्ट्रूमेंट्स भी है जी तो इसमें से आपको हम लोग का है आपका वर्नियर कैलिपर है। जी, वर्नियर वर्नियर कैलिपर है, उसके बाद से स्क्रू गेज है, स्क्रू गेज है। बैरोमीटर है। हाँ जी। उसके बाद आपका प्लेन मिरर, प्रिज्म, ये सब का जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को लेकर जो एक्सपेरिमेंट है, बेसिक एक्सपेरिमेंट, वो सब एक्सपेरिमेंट है। हाँ जी, ओके सर। काफ़ी कुछ यहाँ पे प्रिज्म। उसके बाद हम लोगों ने कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स का भी टूर किया। अभी ये कुछ नई बिल्डिंग्स में काम चल रहा है। तो फाइनली हम लोग कॉलेज देखने के बाद जा रहे हैं लंच के लिए। तो ये था छोटा सा टूर आसाम एनर्जी इंस्टीट्यूट का। शिवडोल कहाँ से क्या करते हैं? जी है वो। हाँ, वो आप खाएंगे? साफा करते हैं। मुझे धीरे धीरे कम होता जाता है।